नमस्ते, हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू जब वी टॉक। आज हमारे साथ है दो स्पेशल गेस्ट। एक तो हमारे साथ गेस्ट रह चुकी है और आज वो हमारे साथ होस्ट है। पर मैं मिस करने वाली हूँ हरी जी को, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा होस्ट के ये शो के एक पार्ट है और हमने एक साथ शुरुआत की थी, तो आज उनको मैं मिस करने वाली हूँ। पर फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि आज हमारे साथ है रचना मैम। रचना कह सकती हूँ उनको, राइट? Yeah, ओके, absolutely. वेलकम रचना, वेलकम एज अ होस्ट टू जब वी टॉक एंड इट्स अ ऑनर एंड प्लेजर टू हैव यू। It's my pleasure, it's my honor to be amongst you. I really admire Malay sir a lot, and it's an honor to host a program where we have to ask few questions from him. It's my pleasure as well as an honor to me that two of the distinguished ladies are there to talk to me. मैं थोड़ा दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ। रचना मैम इज अ पोएटेस फ्रॉम दिल्ली, इंडिया, एंड शी इज अ graduate in tourism studies. She's a prolific Hindi and English poetess. She loves writing about human emotions and nature. She likes to write poems from her experiences and also from fiction. She has also been a part of some anthologies. She's active on various forums and has also participated in several online poetry recitals. Welcome, Rachna. Thank you so much. Today, we are extremely happy to have a very distinguished guest with us. His name is Dr. Malay. Welcome, Dr. Malay. Thank you so much, ma'am. Dr. M.K. Jha is a writer not by profession but by passion, and he gathers the scattered pictures of day-to-day life to weave in the strings of emotions. He usually composes poems, mostly in Hindi, ghazals, but has written few short stories as well. His two books have already been published, and third is in press. He is the co-author of 8 anthologies. In simple language, he touches the deepest of every emotion in his world. One thing great about Malay sir is that he's whenever you visit the Facebook page, his account, you can see string of poems. He's amazingly fast. I get so flabbergasted. इतने जल्दी जल्दी से उनके poems आते रहते हैं Facebook पे, और कहीं भी ऐसा एक भी कविता नहीं है जो दिल को नहीं छूती है। वो हम लोग रिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट तो वो हमारे इतनी करीब लगती है क्योंकि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई लगती है वो। So I'm very happy to have you, sir, and the floor is open to both of you, and we can start. Whatever you want to read, recite, talk, discuss. Thank you so much, Rashmi ma'am. Actually, whatever I compose, that comes from within, and I write too much. Because I am on the platform called that is an app actually, Miraki, and there I made a big record by composing 100 poems in 28 days only, and there I have got more than 2,000 posts. Um, both the languages I touched, Hindi and English, and short stories are there. Actually, it seems that something is going to come out. And yeah, earlier I used to write on paper. Now it is simply typing on the mobile, and in no time, the shortest time, that is in 5 minutes, I can compose a ghazal. And that I read, and I post it on my wall. And if my readers like it, it is the biggest prize for me. That is my achievement. सर आप लिख देते हैं या 5 मिनट में, पर हम लोग उसको ग्रास करते करते इतने
बार पढ़ भी लेते हैं कि वापस उसी पोएम को रिविजिट करते हैं और वापस हम लोग पढ़ते हैं उसको. तो इट्स अ प्लेजर टू रीड योर पोएम्स. I was recently teasing Malay sir that he writes so much that we sometimes feel that we are doing nothing. He is every day you open FB and there is a poem of him. And I told him, sir, you are giving us tough competition. We are nowhere near you. You are every day you are posting 1 or 2 or 3 poems, and we felt like what we are doing. We are doing nothing. No, you have been doing a very tremendous job, because when I read your post, that makes me think and feel also that wow, that is really such a great stuff. And for me, it keeps on going and going and going. So many ideas come into my mind, and as I'm in the teaching profession, dealing with human minds and human activities and behaviors, so many things naturally comes to me, and I pick up and make it in a shape of poem or ghazal, and so it makes okay. Deliberately, I think that every day morning I should post at least one of my poems, whether in the form of a ghazal or just a poem. And if someday I'm unable to post it, I feel that something is missing. So in spite of your profession, that's your passion. Yeah. I want to listen. I want to share with my audience about your profession also. Actually, presently I'm the principal of Kendriya Vidyalaya, and I'm in Kendriya Vidyalaya for last 30 years almost. Oh, wow. Earlier, I was a teacher, postgraduate teacher of English, Okay. and then it's now 10 years that I became principal in Kendriya Vidyalaya, and presently I am posted at Dhana. Dhana is an army camp near Sagar, near Jabalpur in MP, and so my profession makes me alive in the company of my Young students people. and teachers. And when you are with teenagers, obviously some of the traits of teenagers that creep in you, and without knowing, and that makes me almost young at heart. That's so good. आपकी आपकी पोइट्री में भी बहुत वेरिएशन होती है. हर पोएम आपकी बिल्कुल डिफरेंट होती है पहले से, और कई बार ऐसे भी लगता है कि जैसे थ्रेड्स में लिख रहे हैं. आपकी गजल्स ऐसे कई बार लगता है कि एक आई, उसके बाद दूसरी, और उसके बाद तीसरी, ऐसा लगता है जैसे कोई थ्रेड हो. तो बड़ा अच्छा है आपका कॉम्पोजिशन स्टाइल. मैंने आपकी पढ़ी है पोएम्स, मैंने आपकी एक बुक मैंने आपकी पोएम्स पढ़ी हैं, और मैं पर्सनली बहुत एडमायर करती हूँ, स्पेशली आपके उर्दू के शब्दों को मैं बहुत एडमायर करती हूँ. आप उर्दू के बहुत ऐसे वर्ड्स लेकर आते हैं जो हमने शायद पहले नहीं सुने होते. फिर आपकी पोएम्स पढ़कर मुझे जिज्ञासा होती है कि उनको और गहरे में जानो, तो उससे हमें भी थोड़ा नॉलेज मिलता है और और हमें भी सर मन मीनिंग भी करता है. बताते हैं, वर्ड्स हाँ, के मीनिंग भी लिखते हैं सर. तो वो मेरे लिए तो आसान होता है कि मैं समझ पाऊं, क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड दैट मच ऑफ उर्दू. तो यस. एक्चुअली जब गजल एक ऐसी विधा होती है जो एक्चुअली मैं लिखता नहीं हूँ, गजल नहीं लिखता हूँ. फॉर्मेट है गजल का. गजल के लिए जरूरी होता है बहर. बहर इज द मीटर, और वो सारा कैलकुलेटेड होता है. उसमें कुछ बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं. काफिया होता है, रदीफ होता है, फिर उसका एक पैटर्न होता है कि पहला शेर जो होगा जिसको मतला कहते हैं, मतलब और उस शेर में जितनी मात्रा होगी और वही आपको पूरा का पूरा पहले शेर से लेकर के, यानी मतला से लेके मक्ता कहते हैं आखिरी शेर को, जिसमें कि पोइट यूजुअली अपना नाम भी देते हैं. मैं भी देता हूँ कई बार. मेरी गजलों में आप मलय शब्द लिखा हुआ देखती होंगी. तो वहां तक सेम मीटर में चलना चाहिए. ये गजल का स्टैंडर्ड फॉर्म है. मैं उसको फॉलो नहीं करता. मैं गजल लिखता हूँ एहसासों के साथ में.
फीलिंग्स मेरे आते हैं, ऐसे वर्ड को मैं डिपिक्ट करता हूँ कि फीलिंग्स आते हैं। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं गजल लिखता हूँ, मैं पोएम लिखता हूँ जो गजल के फॉर्म में होती है। फॉर्मेट देखने में वो गजल जैसी लगती है, लेकिन बेसिकली वो है पोएम्स। और वो पोएम्स राइम्ड पोएम्स होती है, क्योंकि लास्ट में जिसको रदीफ कहते हैं, आखिरी वर्ड जैसे होता है, मैं वहां गया, तो वहां गया से वहां से मेरा जहां लुट गया, या लुट मेरा जहां गया, तो वहां और जहां ये काफिया हो गया। जो सेम साउंड होगा लेकिन वर्ड बदल जाएंगे, लेकिन गया गया करके जो लास्ट में होता है उसको रदीफ कहते हैं, वो नहीं बदलता है। तो दैट इज अ राइम स्कीम। वो राइम स्कीम हमारा ठीक रहता है, लेकिन मीटर्स को जो पैमाना है, वो मुझे लगता है कि बंदिश आ गई तो मेरे एहसास कहीं ना कहीं चोक्ड होने लग जाते हैं, और मैं फिर उसको थैंक यू बोल देता हूँ कि नहीं, आप अपने घर पे रहिए। So your expression takes over the entire poetic restrictions that are there. Means your या expression, yeah. माई इमोशन ओवर पावर्स द फॉर्म्स, वी कैन से। Yes. इसलिए मैंने कभी भी ये बात नहीं कही कि मैं गजल लिखता हूँ। गजल नुमा मेरी कविता जरूर होती है, और ठीक है, अब इतने सारे लोग गजल लिखते हैं, एक मैं नहीं लिखूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो सुना दीजिए कुछ हमारे ऑडियंसेस को बातचीत। ओके, हाँ, मैं एक गजल नुमा कविता मैं आपको सुनाता हूँ। सब कुछ बिल्कुल गजल के फॉर्म में ही है, लेकिन मीटर कहीं कहीं पे वो किलोमीटर हो गया। ये ऐसे है कुछ। बुझाने प्यास आग की, बुझाने प्यास आग की, पानी पर कुछ लिखो। बुझाने प्यास आग की, पानी पर कुछ लिखो, तकदीर संवर जाए, पेशानी पर कुछ लिखो। पेशानी इज द फोरहेड। तकदीर संवर जाए, पेशानी पर कुछ लिखो। नजर आसमां रहे, कदम टिका जमीन पर। नजर आसमां रहे, कदम टिका जमीन पर, डगमगाए न कभी, जवानी पर कुछ लिखो। समझने लगे हैं लोग मजहबों का मर्म अब, समझने लगे हैं लोग मजहबों का मर्म अब, इंसानों से प्रेम की कहानी पर कुछ लिखो। इंसानों से प्रेम की कहानी पर कुछ लिखो। चाहे कुछ भी हो, जिंदगी कभी रुकती नहीं। चाहे कुछ भी हो, जिंदगी कभी रुकती नहीं। चलते हुए वक्त की रवानी पर कुछ लिखो। जिस्मों से परे भी एहसास बहुत है मलय। ये मक्ता है। जिस्मों से परे भी एहसास बहुत है मलय, सोच खुदा को इश्क रूहानी पर कुछ लिखो। सोच खुदा को इश्क रूहानी पर कुछ लिखो। बुझाने प्यास आग की, पानी पर कुछ लिखो, तकदीर संवर जाए, पेशानी पर कुछ लिखो। लास्ट लाइन इज फैंटास्टिक। बहुत थैंक यू, थैंक यू। लिखना जहाँ तक है वो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश थोड़ा कम, क्योंकि एक अजीब सा ट्रेंड है अभी, जहाँ जहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिटरेरी प्लेटफॉर्म्स हैं, सो कॉल्ड लिटरेरी प्लेटफॉर्म्स हैं, और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा होती है, लोग लिखते हैं, और खास करके जो अंग्रेजी के कद्रदान है या अंग्रेजी लिखने वाले हैं, वो ऐसी अंग्रेजी लिखते हैं। ऑफ कोर्स माय सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड आई हैव डन माय पीएचडी इन इंग्लिश। मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मैं अगर थेसोरस खोल करके बैठ जाऊं और उसमें से कुछ वर्ड्स निकाल लूं और उसके बाद कुछ सेंटेंस बना दूं और तब सोचूं कि मैं पोएम लिख रहा हूं, तो मेरे ख्याल से वो बेईमानी है। अगर मेरे एहसास आपके दिल को नहीं छूते हैं, मेरी बात अगर मेरे पढ़ने वालों के समझ में नहीं आती है, तो मैं कविता नहीं लिख रहा हूँ, उनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत और अच्छी बात।
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी के सो कॉल्ड लिटरेरी प्लेटफॉर्म्स पे जो सचमुच टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड वो चुन करके लाते हैं, उसका मीनिंग तो जानना दूर, उसको एक सिंक्रोनाइज करके उसको एक रिदम में लाना। और अगर इसी को मॉडर्न पोइट्री कहते हैं तो मुझे पोइट्री नहीं आती। तो बहुत से बड़े कवि हो चुके हैं इंग्लिश में, जैसे बीट पोएट्री बोलते हैं इंग्लिश में। बीट पोएट्री आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसका एक रिदम होता है, तो पर उसका जो इम्पैक्ट होता है वो इतना ज्यादा होता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि हम भारी भरकम शब्द को प्रयोग करें, दैट इज इमटेरियल एंड अननेसेसरी। रचना, क्या बोलती हो तुम? मैं यही कहूंगी कि हम जॉनी जॉनी यस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये हम शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं और बड़े होने तक हमें ये बहुत मन को बहुत अच्छी लगती है। ये छोटी छोटी सी पोएम्स है, राइमिंग है छोटे छोटी सी, और ये एक बहुत सिंप्लिसिटी लिए हुए हैं। या इनमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, कोई यस, इसमें कुछ किसी को समझ आने जैसा कुछ नहीं है, तो दिल के बहुत करीब है। यही अगर हम इसको कॉम्प्लिकेट कर देना तो वो बच्चों को अच्छा लगेगा ना हमें अच्छा लगेगा। मुझे नहीं याद कि हमने कभी इंग्लिश पोइट्री के ऐसे सेशन सुने हो जहाँ पे पोइट्री में कोई शेक्सपियर को पढ़ रहा हो और बहुत ज्यादा उनको बहुत अप्रिशिएट इस तरह से कर रहा हो जिस तरह से हम गुलजार साहब को करते हैं या अपने हिंदी पोएट्स को करते हैं। बिकॉज उसमें बड़ी सिंप्लिसिटी लेकर, वो गुलजार साहब भी है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ वो अपनी पोएट्री बोलते हैं, बहुत भावों के साथ। और अगर वही बहुत उसे कॉम्प्लिकेट कर दे, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ले आए जो किसी को समझ नहीं आए, आम भाषा में हम जो बोलते हैं उससे अलग हो, तो शायद उसका इम्पैक्ट उतना नहीं रह पाएगा। जरूर इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा। अभी अगर आज की तारीख में कहा जाए कि इसको जो इंडियन है और जो इंग्लिश लिखते हैं, दे आर नोन एज द इंडो एंग्लियन राइटर। एक होता है वर्ड एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। वो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि वन ऑफ द पेरेंट्स आर फ्रॉम अब्रॉड, one is from India, and the offspring is known as the Anglo-Indian. एंग्लो इंडियन। Anglo-Indian. Indian writing in English, they are known as the Indo-Anglian writer. इंडो एंग्लियन राइटर। तो आज की तारीख में ये तो बहुत पहले से हमारे यहाँ चल रहा है। तोरू दत्त और आर के नारायण, राजा राव, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, वो सब इंडियन थे, वो सब लिखा करते थे। तो उस समय से चला रहा है। आज की तारीख में मॉडर्न में अगर पूछा जाए कि कोई एक बहुत ही ज्यादा रिनाउंड इंडो एंग्लियन पोइट का नाम लिखिए, तो वो नाम आएगा विक्रम सेठ। और विक्रम सेठ के, हालांकि उन्होंने वर्स में नॉवेल लिखा है, पोएटिक ड्रामा टाइप का, दैट इज सूटेबल बॉय। लेकिन उनके पोएम्स जो हैं वो इतने इजी हैं, इतने सोनोरस, इतने म्यूजिकल है। क्लास 10th में उनका पोएम चलता था, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। और उसको पढ़ने के बाद आपको डिक्शनरी की तो बात छोड़ दीजिए, आपको लगेगा कि आप खो गए, एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करते हैं। इवन आप वर्ड्सवर्थ को पढ़िए, वो इंडियन नहीं है, लेकिन उनको पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि पूरी पोएम्स आप पढ़ने के बाद समझ गए कि वो क्या कह रहे हैं। हार्डली एक या दो वर्ड मिलेगा जो आपको लगेगा कि शायद ये थोड़ा सा अनफेमिलियर है, अदरवाइज बहुत सिंपल लैंग्वेज है। हम इंडियन क्यों तुले हुए हैं अजीबो गरीब वर्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए कि सामने वाला, ये कुछ नहीं है, बस ये दिखाने के लिए कि हमें अंग्रेजी आती है। तो ये कविता नहीं है ना, आप तो you are just playing with the words, and that too very unfamiliar words, and you want to bowl out your readers कि बाउंसर मार रहे हैं, उनको लगा वाह क्या शोएब अख्तर ने बॉलिंग किया है यार, सब सर के ऊपर बात। दिस इज नॉट पोइट्री। चलता है, मैं भी इंग्लिश का लिखता हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि वो मेरे रीडर पढ़ें, समझें, क्योंकि पोइट्री इज नथिंग बट इमोशंस। और वो इमोशन अगर हम कन्वे नहीं कर सकते हैं और लोग डिक्शनरी खोल करके अगर बैठना शुरू कर दे, तो वो पोइट्री क्या समझेगा, एंजॉय नहीं करेगा। पोइट्री पढ़ने की चीज नहीं होती है, पोइट्री इज समथिंग टू एंजॉय।
तो फिर वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। बट वो है, आप कहें तो मैं इंग्लिश की अपनी एक पोएम आपको सुना देता हूँ। Yeah, sure, sure. इट्स अ वेरी सिंपल एंड तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स मुझे लिखने नहीं आता, इसलिए एक फ्रेज है दैट इज सो व्हाट। सो व्हाट यानी तो, जैसे बातचीत में हम लोग करते हैं ना, अरे ऐसा हो गया तो क्या, समथिंग। ये सो व्हाट एक बहुत बड़ा तिलस्म का जो है सो चाबी अपने पास में रखा हुआ है, अगर हम उसको सही तरीके से समझ लें तो। सो व्हाट, जस्ट अ फ्रेज इट इज। सो व्हाट, जस्ट अ फ्रेज इट इज, but it can change life's pattern and thinking style. I committed blunder. So what? I will do better next time. I lost my everything. So what? I'm still alive. I can regain better. Oh, my heart is broken. So what? I can still breathe. I can restart my life fresh. I'm depressed. No one loves me. So what? You start loving, caring someone without hoping to get a return. You'll feel your worth. I know no one will read it. So what? You read yourself and enjoy. It is your work and really a great work. Oh, really? It works. And even if it does not work, So what? so मैंने बहुत एंजॉय की थी ये कविता। Even I was laughing when I read it. It is really up to the mark for today's generation. People are doing this nowadays. छोटी छोटी बातों पे परेशान होने की जरूरत क्या है? हो गया तो क्या, उसके लिए जान थोड़ी देना है। अगर आदमी पॉजिटिव अगर सोचे तो ये सो व्हाट एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है उसके हाथ में, कि ठीक है गलती हो गई तो क्या, आगे बढ़ना है ना, लेट अस गो अहेड। सो दिस इज द थिंग आई यूज्ड टू डू। और कोई अच्छी, सभी कविताएं अच्छी है अभी, और कुछ हिंदी इंग्लिश आपके ऊपर है, आपको जो सुनानी हो वैसे। हाँ है, तो जब इतना लिखता हूं तो होंगी तो बहुत सारी। ये थोड़ी भावुक ज्यादा है, फॉर्म वही है गजल की, लेकिन है कविता। ये ऐसे है, कभी दर्द में भी मुस्कुराता है अश्क, कभी दर्द में भी मुस्कुराता है अश्क, कभी हंसी में छलक जाता है अश्क। तन्हाइयों की बात अब रहने भी दो, तन्हाइयों की बात अब रहने भी दो, भरी महफिल में मचल जाता है अश्क। बेटी विदा करते हुए कपकपाते हैं होठ, बेटी विदा करते हुए कपकपाते हैं होठ, टूटे बादलों सा फिर बरस जाता है अश्क। क्या बात है। जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाती है, उसकी डोली उठ नहीं जाती है या कार से चली नहीं जाती है, तब तक पिता अपने आप को संभाल करके रखता है। और एक बार उसके जाने के बाद उसके जैसे लगता है बादल टूट पड़ा हो, वो फूट फूट के रो उठता है। बेटी विदा करते हुए कपकपाते हैं होठ, टूटे बादलों सा फिर बरस जाता है अश्क। रोकता हूं बहुत दिल की जज्बातों को, रोकता हूं बहुत दिल की जज्बातों को, आंखों की गली में बहक जाता है अश्क। चोट लगती है कहीं दिल में या जिस्म पर, चोट लगती है कहीं दिल में या जिस्म पर, दर्द की इंतहा से दहल जाता है अश्क। ख्वाब जब हो जाते हैं मुकम्मल मलय, ख्वाब ख्वाब जब पूरे हो जाते हैं, ख्वाब जब हो जाते हैं मुकम्मल मलय, या खुदा फिर क्यों निकल जाता है अश्क। बहुत कई सुंदर। कई बार होता है कि हम सफल होने के बाद भी रो उठते हैं,
तो जब ख्वाब मुकम्मल हो जाता है, पता नहीं फिर क्यों निकल जाता है अश्क। ये थी मेरी दूसरी गजल। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रचना, कुछ शेयर करना चाहोगी आप इसके ऊपर? हाँ, आपको मैं कहना चाहूंगी कि बहुत टची पोएम है। इसमें अश्कों की बात की गई है, आंसू जो खुशी में भी आते हैं, दुख में भी, डर के भी। आंसुओं के बड़े रूप हैं। कुछ भी हो, आंसू छलक ही जाता है बात करते हुए, अपनापन देखकर, प्रेम देखकर, डर से, दुख से, खुशी से। तो मले सर ने बड़ी खूबसूरती से इसमें कहा है आंसुओं के बारे में। बहुत खूबसूरत बात कही है कि जब डर हो, बेटी को विदा करते हैं, जब बेटी पैदा होती है तब भी आंसू छलक जाते हैं। बेटी को विदा वेरी करते क्यूट। हैं, बेटी पहली बार आती है, बेटी जब जाती है। तो बहुत बहुत खूबसूरत पोएम, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच मैम। ये कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कविता है, ये गजल फॉर्म में नहीं है, ये कविता ओके। है। और माँ का जन्म होता है, यूजुअली बच्चे का जन्म होता है तो माँ कहलाती है, और ये मैंने लिखा है कि माँ का जन्म होता है। मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा कोरिलेट करेंगे, और मेरे लिए तो भावनाएं हैं ही। मैं जब भी लिखता हूँ माँ पर, तो मेरी माँ मेरी नजर के सामने होती है। मैं किसी भी रिश्ते पर लिखता हूँ तो वो रिश्ता मेरा अपना होता है, और वो कहीं ना कहीं सांस लेता रहता है मेरे शब्दों में। ये कविता ऐसे है। बे इंतहा दर्द में तड़पती है, बे इंतहा दर्द में तड़पती है, होठों को भींच कर पीड़ा पी जाती है, फिर दर्द की इंतहा पार कर आंखों में प्यार समेटे मुस्कुराती है। स्वागत धरा पर एक नन्ही जां का होता है, साथ ही जन्म एक माँ का होता है। बहुत सुंदर। बदल बदल जाती है फिर दुनिया ही, बदल जाती है फिर दुनिया ही, आराम कहाँ चैन कहाँ, नींद बिन नैन कहाँ, सारी कायनात सिमट आती है उसके शिशु की मुस्कान में। क्या बात। जान उस जान उसकी बस्ती बच्चे की जान में, जीती है दोबारा वो बचपन सच्चा, खुद बने वो सौर मंडल, सूर्य हुआ अब उसका बच्चा। वाह, क्या बात है। वो अब महज स्त्री नहीं, वो अब महज स्त्री नहीं, वो अब एक अवस्था नहीं, वो तो अब एक सांस लेती भावना बन चुकी है। वाह। वाह। वो अब एक अवस्था नहीं, वो अब महज स्त्री नहीं, वो तो अब एक सांस लेती भावना बन चुकी है। माँ एक शब्द नहीं, संज्ञा नहीं, माँ तो एक एहसास है, एक विशेषण है। इस धरती की सबसे सुंदर सूरत, दूजा कोई और नहीं, बस माँ की मूरत। निश्चल, निर्मल, निर्लोभ प्रेम और ममता, बस माँ के आंचल में ही है मिलता। उतरते देव धरा पर जब उन्हें माँ की कमी खलती है, उतरते देव धरा पर। धरा पर जब उन्हें माँ की कमी खलती है, जिस्म को संस्कार आंचल में ही मिलती है। धन से, ताकत से संसार भले मिल जाए, किसी बाजार किसी दुकान में माँ नहीं मिलती है। माँ क्या होती है उनसे पूछो, माँ क्या होती है उनसे पूछो, जिनके सर पर माँ का हाथ नहीं होता, शरीर होता है जाँ का साथ नहीं होता। क्या बात। ये कविता थी, अभी मदर्स डे के लिए मैंने लिखी थी। बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत हृदयस्पर्शी कविता है ये आपकी। थैंक यू रचना मैम। थोड़ा और दो तीन कविताएं आप सुना सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, जितना भी कहिए, अगर टाइम है आपके पास तो फिर मैं तो कविता का शेर खान हूँ। सर एक गाना भी सुना सकते हैं अगर सर का मन करे तो 2 लाइनें गाना भी सुना सकते हैं। हाँ। हे सर हे की वॉइस भगवान, बहुत अच्छी है। ये तो रचना मैम हमको चारों तरफ से चक्रव्यूह में डाल रही है।
ये कविता भी मैंने लिखा है लड़कियों के ऊपर में, और कैसे क्या कुछ झेलना पड़ता है जन्म के समय से लेकर के जब वो बड़ी हो जाती हैं, औरत बन जाती हैं। तो मैं तो रिलेट कर पाऊंगी। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। दुनिया का कोई भी इंसान जो भी हाँ, होगा, वो इस धरती पर अगर आया होगा तो माँ तो होगी उसके पास में। तो दुनिया का कोई भी इंसान इसको रिलेट कर सकता है इसके साथ। ये कवि कोख में जब से आती हो, कोख में जब से आती हो, एक अनजाने डर से घबराती हो। कब किस दिन नश्तर चल जाए, माँ है ना, ये सोच दिल बहलाती हो। सदियों से चली आ रही ये परिपाटी है, गढ़ा तुमको जिससे ईश्वर ने, वो कौन सी माटी है। वाह। दुख दर्द प्रताड़ना सह सह के, हर बंदिश हर अंकुश रह रह के, तेरे मासूम दिल में रोज उतरते रहे, जमाने के खंजर तेरे पंख कतरते रहे। वाह। कभी दुखों का पर्वत, कभी अश्कों की घाटी है, गढ़ा तुमको जिससे ईश्वर ने, वो कौन सी कौन सी माटी है। माटी है। माँ बहन बेटी पत्नी बनकर, हर मुसीबतों में तुमने तनकर, माँ बहन बेटी पत्नी बनकर, हर मुसीबतों में तुमने तनकर, हर पल अपना हर सुख तजकर, जिस खाना बदोश को गृहस्थ बनाया, वाह। उसने ही तुम्हारे प्रगति पथ की रेखा काटी है। गढ़ा तुमको जिससे ईश्वर ने, बता कौन सी माटी है। बहुत बढ़िया। बहुत फिर भी है परवाज तुम्हारी, फिर भी है परवाज तुम्हारी, अब गूंजती है आवाज तुम्हारे उठने लगे, नभ सागर धरा बने तेरे कदमों के साक्षी, दृढ़ कदम तुम्हारे उठने चलने लगे, नभ सागर धरा बने तेरे कदमों के साक्षी, दरमिया स्त्री पुरुष की खाई तुमने ही पाटी है, गढ़ा तुमको जिससे ईश्वर ने, बता कौन सी माटी है। ये थी कविता संपूर्ण स्त्री जाति के लिए। कोख से लेकर के नभ सागर धरा, ऐसी कौन सी जगह है जहां आज वुमेन पावर नहीं है। आश्चर्य लगता बहुत है सही। कि भगवान ने किस मिट्टी से बनाया है आप लोगों को, कि इतना कुछ सहने के बाद, बर्दाश्त करने के बाद भी आप लोग अपने कर्तव्य को निभा रही हैं, एक पर एक नए ऊंचाइयों को छू रही हैं। हैट्स ऑफ टू यू बहुत ऑल। सुंदर, बहुत योर बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर और बहुत संवेदनशीलता से लिखते हैं आप। जहाँ स्त्री का पोर्शन आता है, स्त्री पर कविता आती है, आपकी संवेदनशीलता ऐसे लगता है उसमें मिठास मिलाकर आप बहुत प्यार से लिखते हैं, बहुत प्यार से पेश करते हैं। स्त्री आपको, मतलब हम स्त्रियों की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद, हमें बहुत इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। आप लोग कम से कम रिलेट तो कर रही हैं मेरी फीलिंग्स के साथ में, और मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है हम कि आप भाव रिलेट कर विभोर हो रही रहे हैं। हैं आपकी कविता सुनकर। आपकी कविताओं में इमोशंस इतने ज्यादा हैं कि वी आर ओवरवेल्म्ड। ये surely, surely। और बहुत बहुत आपके बहुत शुक्रिया। आपके पोएम से वी आर फीलिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। जैसे आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वी आर फीलिंग व्हाट द फीलिंग ऑफ द पोएम इज, सो दैट इज द सक्सेस ऑफ द पोएम, आई थिंक। दरअसल कोई भी इंसान जो होता है, इंसान कहने का मतलब मेरा है कि केवल मानव शरीर नहीं हो, वो भावनाएं, वो एहसास भी हमारे पास में अगर हो, तो इन तीनों का महत्व जिंदगी में बहुत होता है। और एक तो माँ है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपनी जिंदगी की। एक पत्नी है जो जिंदगी को एक अर्थ देती है, राइट। और एक बेटी है जो जिंदगी को संपूर्ण बनाती है। या और या इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से सही मामले में मानव देह में एक इंसान का सृजन होता है, सारी भावनाएं उसके अंदर सिमटती हैं।
प्यार देती हैं, माँ बताती हैं कि जिंदगी क्या है right. और जिंदगी के बाहर उसको कैसे व्यवहार करना है, अपनी जिंदगी के बाहर लोगों से कैसे मिलना है, कैसे बात करना है। पत्नी उसकी जिंदगी की सार्थकता को उसे बताती है कि अब आप संपूर्ण हुए हैं और जिंदगी कैसे दोनों मिल करके चलाते हैं सामंजस्यपूर्ण तरीके से, वो बहुत बड़ी चीज होती है। और बेटी होने के बाद एहसास होता है कि जिंदगी में एक बहार आ गई है। लाख दफ्तर में कोई प्रॉब्लम हो, बाहर कुछ दिक्कतें हो, घर आते ही जब पापा शब्द सुनने को मिलता है तो जैसा लगता है कि सारे के सारे प्रॉब्लम दरवाजे के बाहर ही रह गए और मन प्रफुल्लित हो जाता है। लगता है कि नहीं, घर आ गए। घर तो आ घर घर बेटी अगर घर में नहीं हो तो घर घर नहीं घर घर होता है। नहीं रहता। तो ये मेरे फीलिंग्स हैं और मुझे लगता है मेरी जिंदगी में इन तीनों का बहुत ज्यादा महत्व है। और मैं जो कुछ भी लिखता हूँ, जैसे रचना मैडम ने कहा ना कि स्त्रियों पर जब मैं लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं वो भावनाएं उभर के आती हैं जो मेरी भावनाएं, जो मैं सोचता हूँ, मैं महसूस करता हूँ। दुनिया में अगर मेरे लिए सबसे बड़ा कुछ है तो वो माँ है। और जहां मैं अपने आप को प्रकट कर सकता हूं कि मैं एक्चुअल में क्या हूं। यूं तो हर घड़ी नकाब लगाए रहना एक विवशता है हर किसी की। अगर मैं स्कूल मैं दोस्तों के बीच में हूं तो एक नकाब है, तो नकाब पहनते पहनते अपना चेहरा लोग भूल जाते हैं। लेकिन पत्नी के सामने जब होते हैं तो वो खुद स्वयं के उस पे होते हैं और उन्हें महसूस होता है कि ये है वो। वहां नकाब काम नहीं करता है क्योंकि वहां नकाब उतारने वाली होती है। और बेटी जब पास में हो तो समझ लीजिए कि वो तो जन्नत है, स्वर्ग। बेटी के साथ बैठ के बात करना, उसकी हंसी को देखना, उसकी शिकायतों को सुनना, उसके फरमाइशों को सुनना, मुझे नहीं लगता है कि स्वर्ग में ऐसा कुछ होता होगा। Yes, yes. और बेटी तो बेटी होती है, आप लोग भी हैं, अब घर जाते होंगे, मायके जाते होंगे, तो मम्मी पापा अगर होंगे तो आप समझ सकती हैं कि आप फिर से अपने बचपन में आ जाती हैं, भूल Yes, जाती हैं कि yes. आप भी बच्चे की माँ हैं। आपको याद रहता है कि आप केवल बेटी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने सर। ऐसा ही होता है, मायके जाकर ऐसा लगता है कि हम खुद गृहस्थी नहीं है। वहां जाके माँ से छोटी छोटी बातों पे पूछना, ऐसे कैसे करना है, यही कहाँ पे रखा है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। वहां जाके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती, वहां जाके हम भी बच्चे हो जाते हैं, पुराने वही। एक्चुअली सभी कविताएं इतनी भावुक थी कि मैं मैं एब्सॉर्ब करते करते ही मैं इतना आई एम लिटरली इनटू टीयर्स एक्चुअली। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। तो अच्छी सभी कविताएं मुझे अच्छी लगी, माँ के अ, ऊपर की कविताएं भी बहुत अच्छी थी। मुझे थोड़ा दुख है कि आपकी आंखों में आंसू आया। खुशी है कि आंसू किस लिए आया। Okay. So it was great to have you, sir, on our show. And Rachna, it is always lovely to always be with you because the connect that I have with you and Hari sir is very nice. तो हमेशा ये जो एक एटमॉस्फेयर होता है, सब साथ में आते हैं, सब साथ में शेयर करते हैं, बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सर एंड थैंक यू रचना। थैंक यू थैंक यू सो मच रश्मि फॉर मैम। हैविंग मी, थैंक यू मदर सर। थैंक यू मैम आप दोनों को कि इतना समय मुझे दिया आप लोगों ने। और कितना बोर किया मैंने आप लोगों को ये तो पता नहीं है। और नहीं, अब अब जैसे रचना मैम ने कहा था, अगर 2-4 मिनट का टाइम रश्मि मैम आप मुझे दे दें या श्योर। तो हालांकि कहने को है कि हम लोग अभी फिलहाल अलग हो रहे हैं, तो हाँ, इस मौके के लिए मैं एक दो लाइन गा देता हूँ। नहीं वाह तो वाह रचना मैम, वाह। नहीं तो रचना मैम बोलेंगी कि बोला मलय जी को तो मलय जी ने बात नहीं सुना। तो मैं चूंकि रचना मैम को बहुत इज्जत करता हूँ और इसीलिए उनकी बात नहीं काट सकता। आप लोग बेहोश नहीं होइएगा, लेकिन मुझे गाना नहीं आता है। अभी न जाओ
छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। Thank you so much. अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी, कि जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में, कई मुकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू। Thank you so much. बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर. We really enjoyed having you on our show. Thank you so much, ma'am. You are always welcome again and again and again on our show. बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों एक साथ रहिए, मुझे जितनी बार बुलाएंगे मैं उतनी बार आ जाऊंगा। Always welcome, sir. Always Always. welcome, sir. Okay.